Hello, hello, hello. Hello, everyone. Thank you for showing so much love on my channel. I'm really enjoying it. I think all my hard work is paying off. I am so happy that we're growing as a digital family. As in my introduction, I told you why I started it, this, that. Now, after 5 episodes, I thought I should come and discuss with you what all I have learned, what I feel that I have I grown mentally, how is my mental health, how I'm dealing with my anxiety, and what all things I've learned from these people that I've called and done podcasts with. As I told you in the first episode, that the world is changing emotionally, we're all getting far, this and that. I thought, why not discuss that, how this podcast had helped me, and then you can tell me in comment section, has it helped you in any way? So first of all, let me tell you a little about my emotional health. I have been a very emotional person, overly emotional. I get attached to people very quickly. आप सिर्फ मुझसे एक बार प्यार से बात कर लो and I'll be all yours. I'm that kind of a person. And then I'm a, I'm a, I'm an overthinker. Yeah, because I think with a lot of emotions come overthinking. I am a very giving person. That's what I feel. I get emotionally attached to people. If we have spent some time, we are very a good time together, I'll be really emotionally attached, and I feel that you should be too, which I obviously know is wrong. That shouldn't be the thing, because that's my nature, and I shouldn't be expecting from others. So obviously it hurt me a lot when I don't, you know emotionally get back what I am giving. So that was the reason all those emotions, all that overthinking got me here, because I wanted to grow emotionally. I didn't want to be that person who gets stuck. Why have this person not called me back? Why am I not getting, when I am giving so much love, why am I not getting it back? Because you will not, because people are different, people think differently, and we need to accept that. So that was the main reason. Now you must be thinking, हम क्या करें? तुम्हारे emotions, this and that. But I know a lot of people are like this, and they want to grow, because overthinking, over emotional nature hurts you only, first of all. So my first guest was Hina Sumani. She had been the most patient person I have met. We did first podcast, which I did on a different platform. I mean, recorded on a different platform, which didn't come out well. And she was so patient. I was telling my husband कि यार ये तो बहुत ही गंदा आया है, रुका जा रहा है, and I don't want to play this as my first episode. And with Hina, when I recorded my second episode with Nishta, I told Hina कि मैंने अपना second episode record किया है and all that. So she asked me how did it come and all that, and then I was like, it came good because I recorded in a different way and all that. So she herself said that let's do it again. जबकि जब मैंने फर्स्ट हीना के साथ एपिसोड रिकॉर्ड किया था, आई थिंक इट टुक 1.5 hour टू डू दैट 40 minutes का एपिसोड. शी वॉज so patient at that time also, and then later as well we recorded it. I don't know if she will watch this video or not, but Hina, I love you. Thank you so much for being so patient for my first episode. It means a world to me, because obviously I am so new, I don't know things, and sorry, and you have been really kind. So the first thing I've learned from her, द बेस्ट थिंग जो मुझे लगा कि फर्स्ट पॉडकास्ट में जो मैंने ट्राई किया एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी, वॉज फ्री राइटिंग. जैसे हीना ने बताया था कि हम सोचते हैं कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल देने की, अपने फ्रेंड्स को. मुझे कुछ भी फील हो रहा है, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था कि तो मुझे फील हो रहा है तो मुझे बोलना चाहिए, नहीं तो मैं फेक हूँ. बट जैसे हीना ने कहा कि
अगर हम किसी को अपने इमोशंस इतना अनफिल्टर्ड बोलते हैं तो ऑब्वियसली जैसे हमें हर्ट होता है वैसे दूसरों को भी हर्ट होता है. तो हमें हमेशा अपने वर्ड्स में, अपने इमोशंस में पहले फिल्टर लगाना चाहिए, फिर दूसरों को कुछ बोलना चाहिए. यू नो, बिकॉज मैंने फ्रॉम द टाइम आई रिमेंबर आई हैव mostly been unfiltered, except in few relationships. Obviously you fear some people, their aura is like that you cannot just say anything to them. Before marriage there were some people in my life to whom I just cannot say anything, and after marriage obviously you have to filter no matter what. So yeah. But mostly in almost all the relations I was close to people, I was unfiltered. I would say what I feel. And now when I think that if I get hurt, other people get hurt also. So that's a very negative trait in me, which I have accepted now, and I have started putting filter. So हीना के अकॉर्डिंग फ्री राइटिंग इज व्हेन, जब आप बस लिख, यू टेक अ कॉपी एंड अ डायरी एंड यू जस्ट कीप राइटिंग, लिखते जाओ व्हाटएवर थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड. जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं आप उनको लिखते जाओ. एंड सीरियसली देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है. मैंने बहुत ट्राई किया है फ्री राइटिंग और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है अपने थॉट्स को फिल्टर करने पे. कभी कभी पता है क्या होता है कि आपके साथ कोई सिचुएशन आती है और आपको एकदम से अगर आप रिएक्ट करोगे ना तो आपको वो सिचुएशन बहुत ख़राब लगेगी या वो इंसान की बात बहुत ख़राब लगेगी. बट जब आप उस सिचुएशन की फ्री राइटिंग करोगे, लिखोगे कि ये है, उसने ऐसा ऐसा बोला, तो कभी कभी एट दी एंड आते आते लगता है कि इतना भी कुछ नहीं है, इट्स ओके, लेट इट गो. ये मेरे साथ अब बहुत बार हुआ है आफ्टर रीना's पॉडकास्ट. So yeah, it's a very good thing to do. I will recommend everybody, please do it. फ्री राइटिंग सुबह शाम दिन में जब भी आपको टाइम मिले एक कॉपी और पेन लो और फ्री राइटिंग करो. बहुत हेल्प मिलेगी, आपके थॉट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी काम हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाएगी. और दूसरी चीज़ जो हीना की पॉडकास्ट से मैंने सीखी थी, एक चीज़ उसने बोला था कि एक चीज़ होती है खाली बैठना और एक चीज़ होती है अपने आप को टाइम देना. आप खाली बैठे हो, फालतू सोच रहे हो, ये सब कर रहे हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप फ्री हो, कोई बुक रीड करो, अच्छी वीडियोस देखो, मोटिवेशनल, एवरीथिंग. सो या, डोंट सिट आइडल एंड गिव योर ब्रेन टाइम टू थिंक, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बकवास ही सोचेगा. तो या, एक रीज़न पॉडकास्ट स्टार्ट करने का ये भी था कि जो मेरा दिन का टाइम फ्री है, ना मुझे दिन में नींद आती है, ना मुझे टीवी देखने का ज़्यादा शौक है. तो या एक बहुत बड़ा रीज़न अपनी ओवर थिंकिंग से दूर होना था मेरा इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करना. एंड इसने रियली मुझे काफ़ी हेल्प करी है. तो ओके, देन सेकंड एपिसोड था निष्ठा का. जो मुझे निष्ठा के पॉडकास्ट से बेस्ट चीज़ लगी वो थी, अगर लाइफ में कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, कोई इंसान, कोई सिचुएशन गलत है, तो आप उन 5 सिचुएशन को देखो जो आपके साथ सही हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है, सब कुछ बुरा नहीं होता है. सो अगर एक चीज़ गलत जा रही है, एक चीज़ बुरी हो रही है, तो आप प्लीज़ उससे थोड़ा सा ध्यान हटा के उन 5 चीज़ों को देखो जो सही हो रही हैं. और आई थिंक मेरी भी बीच में ऐसी नेचर हो गई थी कुछ लोगों के साथ रह के, देख के, जो हर टाइम सिर्फ नेगेटिव को ही देखते हैं एंड देन डिप्रेस्ड टाइप रहते हैं ऑल द टाइम. सो आई थिंक वो बहुत ही गलत चीज़ है हमारे अंदर. अगर है ठीक है, आई अग्री, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होता है, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में. बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ गलत ही देखते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते. हमें पॉजिटिव देखना है जो है लाइफ में है, क्योंकि किसी को भी 100% नहीं मिलता है, ना आपको, ना मी को, ना किसी को भी. किसी की हेल्थ, किसी की फाइनेंशियल, किसी के लाइफ में टॉक्सिक लोग, किसी का करियर, बहुत सारे रीजंस होंगे. बट अगर शायद आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं बट आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, उनके साथ आपके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस तरफ फोकस करें और अपने करियर की तरफ डबल मेहनत करें साथ के साथ. और राइट, देन थर्ड था परितोष त्रिपाठी के साथ.
काफ़ी फन इंटरव्यू था एंड उन्होंने अग्री किया, मुझे पहले ट्रस्ट नहीं था वो अग्री करेंगे, बट काफ़ी खुशी हुई मुझे जब उन्होंने अग्री किया। तो या एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम कि अब वो बॉम्बे में अकेले रहते हैं, जैसे हमने केसेस सुने हैं सुशांत सिंह राजपूत, दिस एंड दैट ऑल्सो, और भी बहुत ज़्यादा कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते हैं डिप्रेशन में ये वो। तो उन्होंने यही कहा, अगर आप जो कर रहे हैं उसकी तरफ आपका पैशन ज़्यादा बड़ा है तो काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं जिसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं और करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आपका फैमिली बॉन्ड अच्छा है तो ये नहीं कि सिर्फ फैमिली के साथ, ऑब्वियसली अपनी करियर की तरफ हम ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा डबल मेहनत करें जितनी अभी हम कर रहे हैं, एंड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आई थिंक अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एट वन डे। तो एंड देन इट वाज हीरा योगी, द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन हीरा योगी। मतलब मोर देन जो उन्होंने मुझे एंग्जाइटी या सेल्फ ग्रोथ के बारे में बताया, उससे ज़्यादा मुझे उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, इट वाज सो, मतलब जस्ट बात करके ही मुझे इतना काम फील हुआ उनसे। जब मैंने पहली बार उनसे फ़ोन पे बात करी, मैं थोड़ी कॉन्शियस थी, पता नहीं मैं बिज़ी हूँ, दिस एंड दैट, बट ही वाज लाइक, हाँ उन्होंने बोला मैं बिज़ी हूँ, कल मेरा जी न्यूज़ के साथ इंटरव्यू है, ये है वो है, बट कितने प्यार से एंड ऑल, एंड वो अग्री करा उन्होंने, एंड मतलब जेम ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियसली कि ये तो नहीं है कि मैं उनके साथ रहती हूँ या मैं उनसे कभी मिली हूँ तो मैं उनको जानती हूँ या नहीं, बट हाँ थोड़ा तो पर्सनालिटी में आप, एक उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चार्म था, उनकी सिर्फ उनके वर्ड्स में इतना कामनेस थी दैट आई कांट टेल यू। सो हाँ, बट जो उन्होंने बताया कि प्रेजेंट में रहें, हम आगे के बारे में पीछे के बारे में सोच सोच के अपने आप को खुद एंग्जाइटी देते हैं, अभी आज में रहें, जो हम आज बेस्ट कर सकते हैं वो करें, और फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर करें बट उसके लिए परेशान ना हो। तो हाँ यही सब था, तो मैंने ये सब ट्राई करा है, और भी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं, मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का एट दिस टाइम एक मोटो बनाया है दैट आई हैव टू स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। लोगों की नेगेटिविटी को मुझे इफ़ेक्ट नहीं करने देना है अपने आप को, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, मतलब लोग सिर्फ इसी में निकाल दें हम कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मैं वो नहीं करना चाहती, काफ़ी किया है बट मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मुझे फील होता है कि भाड़ में जाओ यार इतनी छोटी सी लाइफ मिली है तुम पे, मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ उसको। सो प्लीज़ खुद भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो, अगर नहीं रह सकते तो दूर रहो, दैट्स द थिंग। तो फ्री राइटिंग कर रही हूँ मैं आजकल, जर्नल राइटिंग कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, अफर्मेशंस कर रही हूँ। आई होप वन डे आई विल मेक अ वीडियो जब मेरी अफर्मेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी रियलिटी में। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट डे, बट मैं उस पर स्टक नहीं हूँ। आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क, आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स टू मेक मी पॉजिटिव, मेडिटेशन, पार्ट एंड ऑल दैट। आप भी कुछ ना कुछ ट्राई करें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखें। छोटी सी लाइफ है, तेरा मेरा इसी में निकाल देंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। स्टे हैप्पी, स्टे काम। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आई डू ड्राइंग और कलरिंग, स्केचिंग एट टाइम्स व्हेन आई एम फीलिंग दैट आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज मुझे बहुत कम टीवी शोज़ हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे देखना पसंद है। मैं मोस्टली टीवी अपने हस्बैंड के साथ ही देखती हूँ, सिर्फ रात को, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू वॉच। सो या शॉपिंग है, कल मैं मिनीसो गई थी। लेट मी शो यू सम स्टफ दैट आई गॉट एंड इट मेड मी हैप्पी, क्योंकि मिनीसो एक बहुत ही क्यूट स्टोर है जहाँ पे जाके बहुत खुशी होती है छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए। सी द क्यूटेस्ट टिश्यू पेपर्स आई हैव सीन, एंड ऑल्सो दीज कॉटन पैड्स आई गॉट। छोटा सा मिनीसो हॉल टाइप है ये। सो I am trying to use less of these stuff for the environment, but they were very cute, so I got them. Also, because I'm working on my mental health, I'm
starting to work on my physical health as well. At this moment I am at the maximum weight in my life. इतना weight मेरे life में कभी नहीं हुआ जितना इस time पर है. So yeah, I'm trying to reduce it now because when I don't know, जब लोग उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनकी भूख मर जाती है, मेरी बढ़ जाती है. तो मैंने पास्ट टाइम में काफ़ी comfort eating करी है, junk obviously. So now I'm trying to be healthy and eat healthy food and do some workout. So the next thing I got was a yoga mat. I hope I will make the most of it, and in a month I have kept a target and I hope I will be able to achieve it. The next thing I got was umbrella. I thought I'm not going on any monsoon vacation, but I obviously can make some videos with these cute umbrella monsoon videos. So yeah. And the last thing that I got was these cute pens. Got this cute little body wash bottle as well, which I forgot to show. And have eyes on all my pens. So yeah, enjoy, do little things that can make you happy, do big things that can change your mental health. And I hope we all will make this world a positive, happy place to live in. Without anxiety, without jealousy, without being uncomfortable with others' happiness. I hope this is one of my affirmations, that this world become the पॉजिटिव प्लेस जो हम सुनते आए हैं. सत्ययुग टाइप ज़माने में जो टाइम होता था जहाँ पर लोग खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, एवरीबडी वॉज हैप्पी विद ईच अदर. I hope that time come back, and that is one of my affirmations, to make this world a very positive and happy place, not just for self but for everybody. जहाँ सब खुश और हैप्पी हों, जहाँ सब एक दूसरे की हेल्प करते हों. So I hope one day that will happen. And if you are enjoying my videos, please like them, share your feedbacks in comment section, and subscribe the channel, because I am working hard. This will be a motivation for me to work harder. So please subscribe the channel, like the video, share your feedbacks in the comment, and share it with your friends. Thank you. Love you all. Bye bye.